Yes, so students, today we'll be taking up the poem, that is poem number 8 on killing a tree. And now, killing a tree, killing means खत्म करना, मार देना, a tree. एक ट्री को मार देना. How is it possible a ट्री को मार देना? उसको लाओ, आप एक नाइफ लेके आओ, एक कटर लेके आओ, आप उस पेड़ को काट दो, वो पेड़ मर गया. Do you think it's so easy to do so? No, it's not such an easy task. To kill a tree is a difficult one, but to cut a tree is very easy. जो हम literally हम क्या करते हैं, just cut with a cutter ना, हम एक ट्री को काट देते हैं, तो सिर्फ cutting down of tree होता है. It's not killing of a tree. Killing of a tree is not an easy thing because आप उस cut tree को भी कुछ समय के छोड़ दोगे ना, तो with the help of sunlight, with the help of energy, with the help of air and water वो वापिस से regrow करेगा. एंड विद इन टाइम्स अनऑब्जर्व्ड वो वापिस से उतना ही बड़ा ट्री फिर से बन सकता है. टू किल इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज उसने अर्थ को इतना कंज्यूम किया है ना, अर्थ में से इतना सब उसने फीड किया है दैट इट्स नॉट इजी जस्ट टू किल अ ट्री. So see, on killing a tree, you must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. Now, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? That आपने observe किया होगा that people cut down the tree, right? But क्या cut down करना can you kill a tree? Is it easy to do so? क्या ये इतना easy है? So for this answer, we are going to read the poem and we are going to find out that what the poet has to say on killing a tree. Now here, इसके अंदर क्या है? यहाँ पे poet, that is G. Patel, he portrays that how difficult it is to cut a tree. Poet says that a tree cannot be killed with a simple jab of a knife. The tree has grown slowly from the earth's crust. It has absorbed the sunlight, air and water for many years. And many leaves sprout out from its bark. So chopping the tree won't kill it. The breeding bark of the tree will heal. Green twigs will again rise. The branches will again expand. And to kill a tree, its root need to be pulled out and chopped up completely. But when the tree will be uprooted, its strength will expose. उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? इट्स गोइंग टू एक्सपोज विच वॉज हिडन इनसाइड द अर्थ फॉर मेनी ईयर्स. किसी पेड़ को, इतने सालों पुराने पेड़ को जड़ से उखाड़ना इज नॉट इजी. इतनी ताकत लगती है ना, तब हमें उसकी हिडन स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है. आफ्टर द ट्री इज अपरूटेड इट हैज टू बी ड्राई अप एंड डाई आउट. द पोएट हियर नोट्स दैट दिस इज हाउ द ट्री इज किल्ड. So, अभी हम इसका टेक्स्ट देखते हैं. दिस वॉज बेसिकली वी कैन से द पोएम स्केच. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of it leprous hides sprouting leaves. Now he says, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि it takes much time to kill a tree. एक ट्री को किल करने में बहुत समय लगता है. एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ इज नॉट इनफ कि आप किसी भी ट्री को किल कर दोगे. इट कैन सिंपली कट द ट्री बट कांट किल इट. क्योंकि ये ग्रो हुआ है ना, ही स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट. उसको स्लोली स्लोली अर्थ को कंज्यूम करके उसी में से राइज आउट होके इट हैज ग्रोन. इट कौन है यहाँ पे? द ट्री हैज ग्रोन. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसी अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही उसने फीड किया है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, ईयर्स ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, ईयर्स ऑफ एयर को एब्जॉर्ब किया है, एंड ईयर्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया है. एंड बिकॉज इतना सब एब्जॉर्ब करने के बाद में इट हैज grown so strong and out of it leprous hides sprouting leaves. और अपना वही leprous hide कहने का मतलब उसी hidden earth में से जो ये tree निकला, it sprouted the leaves and grown up into a very big beautiful green tree. So just hack and chop. उसे hack करना, उसे chop करना, but this alone won't do it. But खाली chopping cutting से उसका कुछ नहीं होना. Not so much pain will do it. इस पेन से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ना. The bleeding bark will heal. वो जो bleeding bark है ना उसकी, वो जो उसकी छाल है जिसको आपने काट दिया है, जिसके अंदर से liquid is coming out, we can say कि उसकी barks bleed कर रही हैं. They will heal with the time. वो heal हो जाएंगी.
एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और वो जो रिमेनिंग पार्ट जो ग्राउंड के अंदर ही रह गया है ना, जो चॉप नहीं हुआ, वहां से जस्ट क्लोज टू द ग्राउंड, वहीं से वापस से क्या होगा, राइस कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, छोटी छोटी कच्ची कच्ची जो टहनियां होती है जिसे हम ट्विग्स बोलते हैं, वो कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स जो है ना वो वापस से वहां से राइज आउट होंगी। मिनिएचर बोज, स्मॉल स्मॉल उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, जिसको अगर हम अनचेक्ड छोड़ देंगे ना तो वो अपने फॉर्मर साइज में वापस क्या होंगी, दे आर गोइंग टू एक्सपैंड अगेन। So no root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth's cave. So no root, जब तक आप उसको जड़ से पुल आउट नहीं करोगे आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस अर्थ में से जिसने उसे बहुत ही स्ट्रांगली अपने अंदर बाइंड करके रखा हुआ है, कस के पकड़ रखा है, अपनी एक पकड़ बना रखी है, जब तक आप उस रूट को पुल आउट नहीं करोगे ना, उस ट्री का कुछ नहीं होने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू डाई। तो उसको करने के लिए क्या होगा, आपको उसको रोप से, रस्सी से बांधना पड़ेगा और उसको इतना स्ट्रेंथ के साथ में, इतना फोर्स के साथ में पुल आउट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्नैप इट आउट और यू जस्ट हैव टू पुल इट आउट एंटायरली। कहां से उसको पुल आउट करना है, उस अर्थ केव के अंदर से जिसके अंदर वो ईयर्स एंड ईयर्स से जिस अर्थ केव के अंदर वो है, उसी समय उसकी जो स्ट्रेंथ है ना ट्री की, इट्स गोइंग टू बी एक्सपोज, बिकॉज उसको वहां से अर्थ में से पुल आउट करने में आपकी जितनी ताकत लगेगी ना, उस समझो उतनी ही ताकत उस पेड़ के अंदर है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज while taking it out from the earth cave, while pulling it out entirely from the earth cave is going to expose the strength of the tree. The source white and wet from most sensitive hidden for years inside the earth, वो ही ट्री की जो स्ट्रेंथ एक्सपोज होगी, कहाँ से, white and wet and the most sensitive जो hidden था अर्थ के अंदर for years inside the earth, वो सारा का सारा एक्सपोज हो जाएगा। When the tree will be uprooted, its strength will be exposed, which was hidden inside the earth for many years. And after that, what will happen? Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. फिर उसके बाद में क्या होगा, एंड देन द मैटर, और फिर वो जो पुल्ड आउट मैटर होगा ना, वो जो अलॉन्ग विद द रूट, वो जो ट्रंक होगा ट्री का, जो बचा हुआ ट्री था, जो कट करने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, आपने उसको जब पूरा का पूरा या होल ट्री को जब आप अगर पूरी ट्री को किल करना चाहते हो तो आपने उसको रूट से उखाड़ दिया, तो वो जो मैटर है इज गोइंग टू बी स्कॉच एंड चॉक इन द हीट, सन एंड एयर, और उसके बाद में क्या होगा, it's going to dry up, that is it's going to brown up, it's going to harden up, वो twist होगा, wither होगा, dry होगा, and then finally it's going to die, that is it's going to die out, and then it is done, we can say. So the poet says कि at this point, after all this, this is how it is done, this is how the tree is killed. So G.F. Patel has given us that simply chopping and simply with a jab of knife, just cutting out the tree is not sufficient. You have to put the strength. You have to put enough strength to kill a tree. Otherwise, your tree is just cut. It's not killed. Because if you have cut and left it unchecked for some time, so it's going to grow back and expand up again in the former form. Okay, so this was, we can say, the poem. Now we'll see the central idea basically क्या है इस poem का. The poem जो है ना, ये क्या है, it's an indictment of mankind failure to care for the earth. ये शो कर रहा है कि mankind कितना harsh हो गया है, उसने अर्थ की बिल्कुल केयर करनी छोड़ दी है। सरकार जो है ऑब्वियसली इन्वॉल्व है इसमें, बिकॉज पोएट एनिमरेट कर रहा है द वेरियस वेज वी अटेम्प्ट टू किल अ ट्री। पोएट यहाँ पे बता रहा है कि वो वेरियस वे जो हम यूज करते हैं जस्ट टू किल अ ट्री एंड ओनली टू हैव इट सर्वाइव, और किल करने के लिए, और ओनली कुछ वे जो हम करते नहीं है जस्ट टू हैव इट सर्वाइव। द एक्ट ऑफ किलिंग ट्री जो है इज मोर सिंपल देन एक्ट ऑफ टेकिंग अ नाइफ ऑन इट। He says, then there are deep roots and attached with its many function. एक deep root है, उसके साथ बहुत function attached है. So basically what he is trying to tell you is that to actually kill a tree, something much more fierce और intentional must be done. कि आपकी intention होनी चाहिए कि मुझे कुछ fierce करना और मुझे इसे kill करना, तभी आप कर पाओगे। Simply आप अपने nature को disturb कर रहे हो, destroy कर रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो, पेड़ों को तोड़ रहे हो, उससे पेड़ मरते।
नहीं है. It is necessary to actually pull it up by its root and separate it from all that has made it grow. जिस चीजों से वो पूरा grow हुआ है ना, with the air, with the earth, with the sun, with the absorption from the earth, तो उन सब चीजों से जब आप उसको separate करोगे ना, then only it's going to die. So to kill it, what you have to do? Pull it up by the root and separate it from all those things which have helped this tree to grow up. जिसने उसे इतना grow up करने में help किया, उन सबसे उसको अलग कर दो, उसको पूरा root से pull out कर दो, तभी वो जाकर के kill होगा, otherwise वो tree kill नहीं होगा. So we can see that it's not easy to just kill a tree. So see, poetic devices, यहाँ पे जो rhyming scheme अगर हम देखते हैं तो you can see, आप lines देखो यहाँ पे, ट्री के जैसा साउंड करता कुछ भी है? नहीं. नाइफ के जैसा? नहीं. ग्रोन के जैसा? नहीं. तो ये क्या है? इस पोएम का कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. इट्स अ फ्री वर्स. तो जिसकी राइमिंग स्कीम नहीं होती हम उसे क्या बोलते हैं? फ्री वर्स. मेटाफर यहाँ पे हमने देखना है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड इज अ मेटाफर एंड एंकरिंग अर्थ इज अ मेटाफर. ठीक है. सो ये दो मेटाफर्स इसके अंदर है. ये एंकरिंग अर्थ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये. देन एलिट्रेशन. एलिट्रेशन आपको पता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स जो रिपीट होती है. सो सी, ब्लीडिंग बार्क आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे ब्लीडिंग बार्क लिखा हुआ है, ये रहा ब्लीडिंग बार्क. सो देखो ये वाला बी और ये वाला बी, सेम कॉन्सोनेंट्स रिपीट हुए हैं कंसेक्यूटिवली. सो दिस इज व्हाट? एलिट्रेशन. एंड अगेन इन दिस स्टैंजा 4 अगर हम जाते हैं तो वहां पे लिखा है द ट्री, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री. देखो टी एंड अगेन टी, तो ये क्या है? ये भी एलिट्रेशन है. पर्सोनिफिकेशन. ब्लीडिंग बार्क, यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क, अभी भी ट्री ब्लीड नहीं करती है, पर्सन के ब्लीड होता है. सो यहाँ पे जब उसको एज अ पर्सन रेफर किया गया है ना, यहाँ पे उसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया है. सो ब्लीडिंग बार्क इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ पर्सोनिफिकेशन. टोन ऑफ द पोएम. ये पोएम की टोन कैसी है? इट इज समथिंग सजेस्टिव, इट इज समथिंग इंफॉर्मेटिव. कैसी है? ये सरकास्टिक टोन है. बिकॉज वाई? ये एक सरकास्म प्ले कर रही है ऑफ द क्रूअल्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स द अर्थ. तो ये जो सरकास्म बता रही है ना हमें, सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि जो टोन हमने यूज किया, व्हाट काइंड ऑफ टोन इट इज? इट इज अ सरकास्टिक टोन. ओके. सो दीज वर द बेसिक व्हाट these were the, we can say, ये क्या था हमारा? ये हमारे इसके poetic devices. Now see, इसके thinking about the poem, question answer. Can a simple jab of knife kill a tree? Why not? No, एक simply jab of knife से tree kill नहीं होता, because if it is left uncared or unobserved for a time, its new branches can come out, new leaves can sprout, and it can grow to its former size once again. Second, how has the tree grown to its full size? List the words suggestive for its life and activity. Tree कैसे grow हुआ है अपने पहले वाले size, full size में? By feeding upon the earth crust, by absorbing years of sunlight, air and water. जो word यहाँ पे life suggest करते हैं वो क्या है? Consuming, rising, feeding, absorbing and sprouting. What is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? Bleeding bark is that if you chop a tree, it will heal. The poet personifies the tree by using the word bleeding. Hacking and chopping tree, उसके क्या होता है? आप कभी भी किसी टहनी को तोड़ो, आप देखो उसमें से लिक्विड निकलता है ना, so it's kind of a bleeding over there. तो bark bleed करना स्टार्ट करती है. The poet says no in the beginning of the third stanza. What does by mean by this? आप third stanza देखो, थर्ड स्टैंजा के बिगनिंग में पोएट ने यहाँ पे नो यूज किया. ये नो का क्या मतलब है? ये सिग्निफाई कैट करता है दैट द ट्री कैन नॉट बी किल्ड बाय जस्ट चॉपिंग इट. द ट्री, टू किल अ ट्री, उसे हमें अपरूट करना है. सो ये सेज नो, ट्री को आप ऐसे किल नहीं कर सकते हो. इफ यू वांट टू किल द ट्री, यू जस्ट हैव टू अपरूट इट. ओके. So next question is question number 5. What is the meaning of anchoring earth and earth cave? Anchoring earth और earth cave का क्या मतलब है? Anchoring earth का मतलब है trees are held securely by the root in the earth and tree cannot be killed while the roots are firmly held in the ground in the earth. And earth cave refers to the space in the earth जहाँ पे roots rest करती हैं, उसको earth cave कहते हैं. What does he mean by the strength of the tree is exposed? जब एक ट्री को अपरूट करते हैं ना फ्रॉम द अर्थ, इसके रूट्स एक्सपोज होते हैं एंड ये रूट्स लाई करते हैं
lies a tree strength, इसके अंदर ट्री की स्ट्रेंथ होती है पूरी. Therefore poet says that to kill a tree it must be uprooted, and uprooting it exposes its strength. What finally kills the tree? The strength of the tree lies in its root, and when the roots are snapped out, the trees cannot survive. The tree's source is destroyed and it is fully exposed to the sun, and this leads to the death of the tree because its roots dry up and it ultimately kills the tree. Okay, so this was, we can say, ये हमारी poem थी. That is which poem? On Killing a Tree by Keev Patel. So I hope it's well understood by you. Now after this we'll quickly take up a very small composition part. एक डायरी राइटिंग का एक छोटा सा टॉपिक है आपके composition का. Still we have time in our class, so हम उस composition section को ले लेते हैं. Okay, so I'll be sharing the new screen, so you all just please stay over here. So see, when we are talking of the topic diary writing, we say that diary writing is a personal kind of writing, and diary comes to perform a function of alter ego. डायरी राइटिंग यूजुअली इन्वॉल्व करता है, रिकॉर्ड करता है आपकी पर्सनल फीलिंग्स को, एंड जो उस टॉपिक में रिफ्लेक्ट हो जाती है. ये कहीं ना आप इसको राइटर जो होता है ना, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को उसमें या अपने फ्यूचर डायरेक्शंस को उसके अंदर क्या करता है, रिटन में उसके अंदर मैटर को राइट अप करके छोड़ देता है. एंड डायरी राइटिंग बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है. राइटर जो होता है उसके पास लिबर्टी होती है कि वो जो चाहे लिख सकता है. उसको किसी को कर्स करना है वो अपनी डायरी में कर्स कर सकता है, उसको किसी को प्रेज करना है वो कर सकता है, बिना किसी फियर के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एप्रीहेंशन के आप अपनी डायरी राइटिंग करते हो. सो डायरी बेसिकली जस्ट यूज टू बाउंस ऑफ द आइडियाज टू अनबर्डन वन सेल्फ. जब आपके दिमाग पे कई बार बर्डन होता है, आपको किसी से शेयर करनी है, बट यू आर नॉट गेटिंग द राइट पर्सन जिससे आप पूरी मन की बात करो. सो टेक अप अ डायरी, स्टार्ट राइटिंग अ डायरी. आप अपने डायरी के साथ अपनी सारी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करो. एंड दिस वे वी कैन से, हाउएवर, डायरी राइटिंग को हम रिगार्ड करते हैं एज अ साइन ऑफ पर्सनल ग्रोथ. सो फॉर्मेट क्या होता है डायरी राइटिंग का? सिर्फ डायरी राइटिंग बहुत ही पर्सनल होती है, उसके कोई सेट रूल्स नहीं होते, सब अपने हिसाब से चेंज करते हैं, उसको ब्यूटीफाई करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं. उसमें आप थॉट्स लिख सकते हो. हमेशा डायरी में ना फर्स्ट लाइन ऐसा लिखो कि पूरा पता चल जाए कि आज आपकी डायरी खुशी के बारे में है या कोई सैड एक्सपीरियंस है. जैसे आप बहुत खुश हो तो आप लिखोगे ओ आई एम वेरी हैप्पी, ओ अमेजिंग, इट वाज अ ग्रेट डे. तो उसी से पता चल गया कि आपका डे बहुत, अलास इट वाज अ बैड, होप दिस वोंट हैपन अगेन. तो उससे पता चल गया कि कुछ बैड है. वाओ अमेजिंग, तो ये शो करता है दैट समथिंग सरप्राइजिंग यू आर गोइंग टू डिस्कस विद योर डायरी. So since diary is very personal, it has no set of rules that you have to follow. However, कुछ points है that have to be mentioned in your diary. So see, date, time and day. First thing, suitable heading. that जो मैंने आपको बोला, एक suitable सा heading डाल दो डायरी के लिए, so it shows कि आपकी डायरी किसके बारे में है. कंटेंट इन एन इम्पर्सनल मैनर, बहुत ही इम्पर्सनल से मैनर में कंटेंट डालोगे, लाइक एज दो यू आर टॉकिंग टू सम योर वेरी क्लोज फ्रेंड. बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, बिल्कुल अनफॉर्मल में. इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गंदा गंदा लिखोगे, यू हैव टू राइट गुड थिंग्स, बट उसमें जो लैंग्वेज यूज करोगे ना बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, और बहुत ही आप बोलोगे जैसे इंटरपर्सनल सी लैंग्वेज होती है ना, बहुत ही इनफॉर्मल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज यूज करोगे. वर्ड्स लाइक डियर डायरी कैन बी यूज. आपने अगर डायरी को कोई नेम दिया है तो यू कैन राइट डियर सो एंड सो, और वैसे आप डियर डायरी लिखते हो उसके लिए बिगनिंग में. डियर डायरी, टुडे आई लाइक शेयर माय एक्सपीरियंस, डू यू नो आज मेरे साथ क्या हुआ, और इस तरीके से पूरा डू यू नो आज मैं कितनी हैप्पी हूँ वो सब लिखोगे. डू यू नो आज मैं कितनी सरप्राइज्ड हूँ, तो ऐसे सब चीजें. सम राइटर्स एड्रेस द डायरी विद अ पर्टिकुलर नेम. देखा, मैंने बोला आप नाम है तो आप अपनी डायरी को पर्टिकुलर नेम से भी एड्रेस कर सकते हो. Signature and name. At last, you have to write your name or your signature. And content of the diary includes that diary should be written when some incidents worth recording has taken place. कोई worth चीज होती है ना, उसी के लिए हम डायरी लिखते हैं. ठीक है, ऐसे ही कुछ भी चीज उठा के डायरी में नहीं लिखते, कुछ बहुत ऐसा इंसिडेंट्स जो सच में रिकॉर्ड करने लायक है उसके बारे में लिखते हैं. इट शुड नॉट रिकॉर्ड वेदर अपडेट्स, रेसिपीज और रिमाइंडर्स एक्सेट्रा. आप डायरी में कभी भी वेदर अपडेट्स नहीं लिखते हो, रेसिपीज नहीं लिखते हो या रिमाइंडर्स नहीं लिखते हो पर्सनल डायरी में. इट शुड बी एन ऑनेस्ट एंड थॉटफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल एंड वन सेल्फ. ये कैसा होना चाहिए? बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही थॉटफुल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए पीपल का और ऑफ योर वन सेल्फ अपना.
क्रिएट योर ओन स्टाइल एंड फॉर्मेट, अपना खुद का स्टाइल और फॉर्मेट को क्रिएट करो. इवन इफ आइडिया लुक्स एट डिसजॉइंटेड इट शुड नॉट मैटर. अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि आइडियाज आपके बिल्कुल डिसजॉइंटेड है तो भी इट डजंट मैटर, इट शुड बी नाइस. कैसा भी हो, मीनिंगफुल हो बस. यू शुड रिकॉर्ड और राइट समथिंग दैट रियली इंस्पायर्ड यू एंड विच यू वुड लाइक टू रीड लेटर. एंड आपको रिकॉर्ड करना है और लिखना है उन चीजों को जो रियली आपको इंस्पायर करती हैं, विच यू वुड लाइक टू रीड लेटर, जो आप बाद में भी बार बार जिसको आप पढ़ना चाहोगे. सो हियर इज वन एग्जांपल, आई विल रीड इट आउट. जस्ट आप देखेंगे, फॉर्मेट देखते जाओ और देखो किस तरीके से लिखा है. You were fortunate enough to attend the leadership camp organized in your school. Record your thoughts in the form of diary entry. आप अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हो बिकॉज यू गॉट अ चांस टू अटेंड द लीडरशिप कैंप जो ऑर्गेनाइज हुआ आपके स्कूल में. अपने थॉट्स को इसके अंदर रिकॉर्ड करो. सो सी द फॉर्मेट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर. आप डे लिख रहे हो और डेट लिख रहे हैं, ट्यूसडे कॉमा एंड द डे. जस्ट उसके नीचे यू आर राइटिंग द टाइम. सो 3 थिंग्स, डे, डेट एंड टाइम. उसके नीचे सैल्यूटेशन दैट इज डियर डायरी. कोई नाम हो तो नाम, अदरवाइज डियर डायरी. अब इसका पूरा कंटेंट देखो कितना इनफॉर्मल कंटेंट होगा. लास्ट 2 days वर मोस्ट इंटरेस्टिंग डेज ऑफ माई स्कूल लाइफ. अब देखना ऐसा ही लगेगा जैसे कोई 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं. द लीडरशिप कैंप विच वॉज ऑर्गेनाइज फॉर 9th standard प्रूव टू बी रियली फन. It hindsight I can say that it was also a very motivating and informative experience. We went to school in casuals, which was very thrilling. The first section was icebreaker. These games were very interactive. Imagine I didn't know half of the children of the class. It was nice befriending Deepak and Mahesh. I am glad that I have one more year in the school to build on this friendship. देखा कितनी आपने अपनी पर्सनल फीलिंग्स उसके साथ में शेयर कर ली. लंच वॉज यमी एंड वी रियली एट लाइक लूटॉन्स. बुक्कड़ों की तरह खाना खा लिया हमने. फाइटिंग फॉर, जैसे बुक्कड़ होते हैं ना, फ्रेंड्स आपस में बैठते तो ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी. हम कोई हिसाब ही नहीं रखते दैट हाउ मच वी हैव ईटन. हमने कितना खाया कितना नहीं खाया, डजंट मैटर एट ऑल. हम बस खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं. Fighting for things we otherwise never bother about. I especially liked the interactive session conducted by our teacher on the themes of sporting spirit and conflict resolution. The most informal part of the leadership camp was the interactive session with Dr. Sameer Parekh, the renowned psychiatrist. He was so frank and being young. He definitely handed us stupid questions. Some were really embarrassing, but didn't feature for a second. Maybe it is his job after all. The best and the most glamorous part of the camp was spending a night in the school. We really kept up our resolutions, not letting anyone sleep. अब किसी को सोने ही नहीं दिया. आज तो जगो भाई, सब कोई नहीं सोने वाला, मस्ती करेंगे हम. The school looked so deserted and quiet yet so charming. स्कूल इतना खाली, इतना सुनसान, बट इतना charming and इतना strange. बहुत अजीब बट बहुत ही charming लग रहा था. Some groups were gossiping and laughing. कुछ बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे. Girls in the next room thought singing was the best way of enjoyment. Next room में जो girls थे, they were singing because they thought singing सबसे best way है. By the time it was 5 o'clock in the morning, we had difficulty in keeping our eyes open. And by the time ये 5 o'clock था ना in the morning, and हमें बहुत difficulty हुई in keeping eyes open, उठने में भाई. It was an ordeal to trudge back home in the morning with half eyes shut. अब ये बहुत ही अजीब सी चीज हो गई थी. अवेक, कीपिंग अवेक ऑल नाइट. अब घर वापस जाना इन द अर्ली मॉर्निंग, और वो भी आधी आंखें जब आपकी खुल रही है आधी बंद है, उस समय घर जाना वॉज रियली अ वेरी ऑडियल थिंग. बहुत ही डिफिकल्ट चीज थी. सो देखो हमने खूब खाया. हम ऐसी चीजों पे हम आपस में झगड़े जिन चीजों के लिए हम बॉदर भी नहीं करते थे. तो फन फाइटिंग थी, मस्ती में लड़ाइयां की, हमने मस्ती की. तो वो सब चीजें उन्होंने इसमें शेयर की. This camp was the best part of my life and will remain etched in my memory permanently. And ये जो कैंप था ना, ये मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट, और ये हमेशा मेरी मेमोरी के अंदर क्या रहेगा, एकदम वो रहेगा, फिक्स्ड रहेगा मेरी मेमोरी के अंदर, परमानेंटली वहीं पे रहेगा. ये अंकित, लास्ट में उसने अपना नेम दिया अंकित. सो इफ नेम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप अपना नाम लिख दो यहाँ पे, जो भी आपका नाम है. सपोज क्वेश्चन में दे दिया दैट यू आर रोहन, राइट अ डायरी एंट्री. तो आपको यहाँ पे अंकित की जगह क्या लिखना होगा, रोहन.
इधर यू आर बॉय और गर्ल, आपको अगर रोहन दिया है तो आप रोहन ही लिखोगे, आपको अगर रोहिणी दिया है तो यू हैव टू राइट रोहिणी, आइदर बॉय और गर्ल, डजंट मैटर एट ऑल। एंड इफ नो नेम इज गिवन तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव योर रियल नेम। और अगर आपको ऑप्शन दिया जाए यू आर रोहन ऑब्लिक रोहिणी, सो गर्ल्स राइट रोहिणी, बॉयज राइट रोहन। सो दिस वे वी कैन से कि ये हमारा क्या था, दिस वाज आवर डायरी एंट्री। सो होप यू अंडरस्टैंड द डायरी एंट्री नाइसली। तो इसका मैं आपको पीडीएफ एंड अलॉन्ग विद दिस मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके सेंड करूंगी, कंप्लीट देम एंड सेंड इट बैक टू मी। So this was all we can say for today's class. So we will be stopping our class over here and we will be meeting in our next class with something new. Just go through these 2 topics, that is one is poem and the second is the diary entry. Hope you are going to understand it well. So any queries you can ask me. So with this we will be ending our class and we will be meeting in our next class. Till then just take care of your